We will start with our lecture. In the last lecture, we covered we started with the definition of bearing, and after that, we have seen the different type of meridian. Okay, so we will just recall the different type of meridian, and again we will switch towards the bearing. So first, we will see the definition of bearing. So bearing is defined as the direction of any line with respect to the given meridian. Okay. So we are measuring the direction of that survey line with respect to the meridian. So as we know that we are finding out the coordinates of any point with respect to some reference point. The same way here we will going to find out the direction of survey line with respect to the meridian. Now what is mean by meridian? So there are the three type of meridian here on the screen. The type of meridians are given. So this is a fixed reference line with respect to which the horizontal angle are measured in a clockwise direction is called as a meridian. Okay. तो जो कुछ भी रेफरेंस लाइन से अपन ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर करते हैं, so that reference line we are calling it as a meridian. Now here three type of meridians are there. So first is a true. Okay. So it is a line through that the plane is passing from the north and the south pole of the earth. So this the plane or the reference line which we are assuming as a true meridian which pass from the north to south pole of the earth. Okay, and the angle which measured from north to the south pole from that line is called as a true bearing. तो ये ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजर करेंगे सो दैट वी विल कॉल इट एज अ true bearing. So true meridian may be established by the astronomical observation. So we cannot able to connect these 2 points directly on the earth. So we need to take a survey from the space, and then we can find out the true meridian. And true meridian is south pole is called as a true meridian. The all readings are taken with respect to that north and south pole are called as a true bearing. And this true meridian is always fixed. That means the direction of this true meridian never change with respect to the time and the location. Okay. Next is a magnetic meridian. So magnetic meridians, when we keep a magnet as a floating or in a hanging position, the direction of that magnet will be the direction of that magnetic meridian. ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ट्रू मेरिडियन which is drawn as which the line which is connecting from north to south, and magnetic meridian it is somewhat tilted. Okay, and uh, the angle which we measured with respect to this magnetic meridian जो tilted है उसके रिस्पेक्टिव अगर अपन में 1 सेकेंड हेलो हाँ so the direct angles are measured with respect to this magnetic meridian are called as a magnetic bearing, and this magnetic meridian can be formed using a freely moving magnetized needle. तो नीडल को मैग्नेटाइज करके अगर उसको अपन फ्रीली हैंग करते हैं, सो दिस मैग्नेटिक मेरिडियन वी कैन यूज टू मेजर द एंगल्स. ठीक है, एंड इसका हमेशा डायरेक्शन इस मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा चेंज होता है टाइम एंड लोकेशन के हिसाब से. ओके, and the next one is a arbitrary meridian. So arbitrary meridian is a temporary meridian, or this is an assumed meridian which we have assumed sorry the direction of any particular point which we measured from the known
लोकेशन और फ्रॉम द नोन डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर परमानेंट ऑब्जेक्ट को अपन रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके we are measuring the angles of other points are called as a arbitrary meridian. तो वो केस में we are not using the magnetic meridian or a true meridian, so that is called as the arbitrary meridian. So for small survey, for preliminary survey, we are using this arbitrary meridian. Okay, so these are the three type of meridian. Now we will see the bearings. Now, once again, we will see the definition of bearing. So, bearing is defined as a direction of any line with respect to the given meridian. तो ये तीनों में से कौन से भी मेरिडियन के रिस्पेक्टिव अगर अपन ने एंगल मेजर किया, so that angle we will call it as a bearing. So we are measuring that bearing. That means we are measuring the angle in a two form. One is a WCB, means whole circle bearing, and that whole circle bearing we are also calling it as a azimuthal bearing. So azimuthal bearing भी बोल सकते हैं या फिर whole circle bearing भी बोल सकते हैं. This one is the one type. Okay. And the second type is a quadrantal bearing, और उसको अपन radius bearing भी बोल सकते हैं. Either quadrantal bearing or a radius bearing. So these are the two way by which we are measuring the angle. Okay, that means we are measuring the bearing. So ये दो form में अपन angle measure करते हैं. तो क्या ये दो forms that we will see? The first is a whole circle bearing और a azimuthal bearing. तो उसमें क्या है? The bearing of the line is measured with the magnetic north in a clockwise direction. Okay, तो यहाँ अपन एंगल मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन क्लॉकवाइज में अपन एंगल मेजर करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ होल सर्कल बियरिंग. ओके, और azimuthal bearing. The value of the bearing is varies from 0 to 360 degrees. तो ये पूरा नॉर्थ से अपन का जीरो एंगल स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू अ 360 डिग्री. तो ये पूरा जैसे नॉर्मल वे से आप मैथ्स में मेजर करते हैं एंगल, in the same way we are measuring the angle, but it is from the magnetic north. That means magnetic meridian से the second type of meridian is a magnetic meridian. So magnetic north से अपन clockwise direction में angle measure करते हैं कौन से भी reference, कौन से भी line का, तो that is called as a whole circle bearing or a azimuthal bearing. जो अपन प्रिज्मेटिक कंपास अपन ने देखा था, जिसमें वन साइड इज आई स्लिट, द अदर साइड इज ऑब्जेक्ट वेन, देन प्रिज्म था. सो दैट इज व्हाट द प्रिज्मेटिक कंपास. तो ये प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्कल फॉर्म में अपन बेयरिंग को दिखा सकते हैं या फिर क्वाड्रेंटल बेयरिंग के. सो द फॉर्म one form, that is whole circle bearing, is in the prismatic compass. तो prismatic compass is based on the whole circle bearing form. ठीक है, फॉर्मेशन. तो अगर आपको ऑनलाइन में पूछ सकते हैं, मे भी पूछ सकते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास में किस टाइप के रीडिंग लेते हैं. सो द ऑप्शंस आर होल सर्कल बेयरिंग, azimuthal बेयरिंग, बोथ एंड नन ऑफ अबाउ. तो इसमें आपका आएगा होल सर्कल बेयरिंग. तो जहां से नॉर्थ से अपन कोई सा भी एंगल मेजर कर सकते हैं, बट इट इज इन ओनली फ्रॉम द नॉर्थ. ओके, नॉर्थ से ही मेजर करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो यहाँ दिख रहा है डायग्राम में. ओके, देन next is a quadrantal bearing. Okay, now in this quadrantal bearing we are measuring the angle with respect to the north south meridian. Okay, तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ है उसके ही रिस्पेक्टिव अपन हमेशा एंगल मेजर करते हैं. इट मे बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट मे बी इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, एंड the reference line or the point of which we are measuring the bearing. So that point is nearer to, either this point is nearer to the north direction, or if either this line uh, of which we are measuring the bearing, so that line is nearer to the south direction, then we are taking the angle from the south. If this line is nearer to the north direction, then we are taking the angle from the north only. ठीक है, that means
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका लाइन होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका लाइन होगा, देन वी आर मेजरिंग द बियरिंग, दैट मीन्स एंगल ऑफ दैट लाइन फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन ओनली। ओके, ईस्ट से कभी नहीं मेजर करना है, वेस्ट से कभी नहीं मेजर करना है। वी आर मेजरिंग द एंगल ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ओनली। ठीक है, द रेफरेंस, सो द ऑब्जर्वर, दैट सर्वे लाइन, ये अपना सर्वे लाइन है, जो रेड लाइन है जिसका अपन को सर्वे करना है। सो इफ द एंगल ऑफ दिस सर्वे लाइन वी आर मेजरिंग फ्रॉम नॉर्थ और द साउथ डायरेक्शन। ओके, तो यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ सकता है। देन हाउ वी हैव टू नो, हाउ वी हैव टू डिफाइन दैट एंगल, तो जिस डायरेक्शन से, जिस पोल से मेजर किया, सो वी नीड टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पोल बिफोर टू दैट एंगल। तो यहाँ मैंने नॉर्थ से मेजर किया है, सो यहाँ एन लिखा है। देन हाउ मच इज द एंगल, सो दैट एंगल इज मेंशन्ड ओवर हियर, and in which direction we measured, either in the east direction or either in the west direction we measure, so that we have to write it after that angle. Okay, सो दैट मीन्स अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका रेफरेंस लाइन आता है या सर्वे लाइन आता है, नॉट रेफरेंस लाइन, सर्वे लाइन, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ इन द योर survey line is in the first quadrant, then the angle of that first line will be n theta e. ओके, कौन सा, ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा क्वाड्रेंटल बेयरिंग और द रिड्यूस्ड बेयरिंग। सो आइदर इट इज अ क्वाड्रेंटल, यहाँ डायग्राम के नीचे लिखा है रिड्यूस्ड बेयरिंग। ठीक है, आइदर क्वाड्रेंटल बेयरिंग और द रिड्यूस्ड बेयरिंग। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका हमेशा नोटेशन आएगा एन थीटा ई। If your angle is in the fourth quadrant, so the notation of that bearing will be n theta w. Okay, north, theta, west. Then if your angle is in the second quadrant, then how we have to show that angle? It is s theta e. And if the angle is in the third quadrant, so how we will define that? It is again s. The first letter will start with the south pole, so s theta and west. In the west direction we are measuring, so the last letter will be of a west. Okay, so this is the way by which we can define that quadrantal bearing. And obviously in quadrantal bearing your theta will never be a more than the 90 degree. तो यहाँ कौन सा भी थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से अपन उसको नोटिफाई करते हैं एंड मेजर करते हैं। सो this quadrantal type of system is in the सर्वेयर कंपास, बट सर्वेयर कंपास अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो बट ये जो क्वाड्रेंटल टाइप में आपको मेजर करने होते हैं एंगल, सो दैट रीडिंग वी कैन डायरेक्टली गेट इट फ्रॉम द सर्वेयर कंपास। ठीक है, जैसे एंड प्रिज्मेटिक कंपास से कौन से फॉर्म में आपको रीडिंग्स मिलते हैं, दैट आर इन दी होल सर्कल बियरिंग फॉर्म, डब्ल्यू सी बी फॉर्म में आपको वहाँ रीडिंग्स मिलते हैं। बट इन सर्वेयर कंपास यू आर गेटिंग द रीडिंग इन फॉर्म ऑफ अ रिड्यूस बेयरिंग और इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेंटल बेयरिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट सी, now once you understood difference between the whole circle bearing and the reduced bearing or the quadrantal bearing, so we have a conversion of WCB into RB और RB into WCB। तो आपको होल सर्कल बेयरिंग को कन्वर्ट करना है रिड्यूस बेयरिंग में और रिड्यूस बेयरिंग को कन्वर्ट करना है होल सर्कल बेयरिंग में। सो दीज आर सम फॉर्मूलाज आर गिवन, it is not necessary you to mug up this formula, you just imagine that in which quadrant is your angle is given and accordingly give the names to that quadrant, names, give the names to that bearing according to the form। कौन से फॉर्म से दे रहे हैं, आइदर होल सर्कल बेयरिंग के फॉर्म में से दे रहे हैं या रिड्यूस बेयरिंग में के फॉर्म में से दे रहे हैं। ओके, तो सपोज फॉर एग्जांपल वी विल सी दैट, सपोज अगर आपका फर्स्ट लाइन, अगर ये ए बी लाइन है, दिस सर्वे लाइन, if the first line which is coming in the first quadrant, तो होल सर्कल बेयरिंग में अगर आपको उसको नोटिफाई करना है, if you have to show the angle of this survey line in form of a WCB,
So what will be the angle? Obviously the angle of this line will be a less than 90 degree. Okay, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा. 90 डिग्री से कम कौन सा भी एंगल आ सकता है क्योंकि इट इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, तो जैसे आप नॉर्मली मेजर करते हो आपके कंपास से, द सेम वे यू कैन मेजर दैट एंगल फ्रॉम द नॉर्थ बाय टेकिंग द नॉर्थ एज अ जीरो लाइन. तो जीरो से यहाँ से आपको एंगल मेजर करना है. ठीक है, अगर सेम अगर आपका लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो आपका आएगा नॉर्थ. इन केस ऑफ रिड्यूस बेरिंग सो योर एंगल इज एन थीटा ई आ जाएगा. ठीक है, तो इन केस ऑफ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट योर एंगल जो कुछ भी आपका आरबी होगा रिड्यूस बेयरिंग का एंगल होगा द सेम एंगल इज ऑफ योर WCB दैट मीन्स होल सर्कल बेयरिंग का. तो हमेशा ये लेस देन 90 आता है आरबी में ये एंगल. ओके, तो यहाँ भी ये लेस देन 90 आ रहा है. सो ऑब्वियसली जो कुछ भी थीटा वन होगा द सेम थीटा वन विल बी हियर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बट ओनली द prefix and suffix later will come after this angle. ठीक है, इन केस ऑफ रिड्यूस बेरिंग तो रिड्यूस बेरिंग में बस नॉर्थ एंड ईस्ट ऐड हो जाएगा वो एंगल के लिए. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, अगर आपका बेरिंग यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है सो ऑब्वियसली वो 90 से ज्यादा होगा. होल सर्कल बेरिंग में अगर आपका सर्वे लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो वो बेरिंग आपका 90 से ज्यादा होगा या 180 से कम होगा. ठीक है, तो ये 90 से ज्यादा है एंड 180 से कम है तो आप डायरेक्टली वो मेजर करोगे तो आपको वो एंगल कुछ भी मिल सकता है. मे इट विल बी अ 130. ठीक है, अगर ये आपको एंगल 130 मिल जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल वी अज्यूम दैट दिस थीटा टू एज अ 130. सो हाउ सो 130 है तो ऑब्वियसली it is more than 90 degree and it is less than 180 degree. So it is coming in the second quadrant. So if we have to convert this 130 into a reduced bearing, तो ये 130 को अगर आपको reduced bearing में convert करना है, so how we will convert it? तो ये अगर 130 है नॉर्थ डायरेक्शन से, बट इन केस ऑफ रिड्यूस बेरिंग वी आर मेजरिंग द एंगल फ्रॉम द साउथ पोल तो आपको ये वाला एंगल चाहिए. तो ये वाला एंगल कैसे मिलेगा? ये थीटा थीटा टू जो है आपको 180 में से डिडक्ट करना है. ओके, so this is 180 and you have this theta 2 as a WCB angle given to you as a 130. So 180 minus 130 will be your theta 2. ओके, तो वहां से आपको आपका रिड्यूस बेरिंग मिल जाएगा. एंड हाउ व्हाट द सफिक्स एंड प्रीफिक्स विल कम फॉर दिस थीटा 2. सो इट इज साउथ. As it is in the second quadrant, the first prefix will be a s and the second suffix will be e because we are measuring it is in the second quadrant. ठीक है, तो देखो तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ 180. ये टोटल 180 में से अपन ने 130 डिडक्ट किया. ओके, सो 180 माइनस WCB विल बी आर RB रिड्यूस बेयरिंग. ठीक है, so that means if our angle is in the second quadrant so how to convert WCB into RB. तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 180 में से WCB माइनस करोगे तो आपको RB मिल जाएगा. एंड वॉट एवर द एंगल एज ऑफ RB you got, so you just going to give them a suffix and prefix as a S and E. Okay, तो prefix will be S, the angle जो कुछ भी RB का मिला है and prefix suffix will be E. Okay, so ये आपका RB होगा. Then if your WCB in the third quadrant अगर आपका ये 180 से ज्यादा है but 270 से कम है, if it is more than 180 but less than 270. Okay, so if we consider it as a 220, अगर आपका एंगल 220 है तो कैसे आपको RB पे कन्वर्ट करना रिड्यूस बेरिंग में? सो आपको ये जो पूरा जो आपका WCB है ये आपका आएगा पूरा WCB यहाँ से यहाँ तक. तो उसमें से अगर आप 180 डिडक्ट करते हो सो इफ यू विल डिडक्ट दिस 180 from that WCB whole circle bearing so you will get this small angle theta 3. तो ये theta 3 मिल जाएगा as a reduced bearing. Okay, which is in the third quadrant. So
and angle we are measuring it always from the south pole, so we will give the prefix as a S and the suffix will be W. ठीक है, तो S थीटा थी W, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा WCB minus 180 and with the notation as SW. ठीक है, and if the whole circle bearing is in the third quadrant, that means it is less than 360 but more than 270. तो वो केस में आपका अगर आपका ये 280 आता है फॉर एग्जांपल या 290 आता है, विल कॉल इट एज सपोज 300 आता है, सो अगर ये अपना 300 आता है ये एंगल, सो इफ इट इज आस्क अस टू कन्वर्ट इट इनटू द reduce bearing, तो 300 है, तो ऑब्वियसली दिस 300 वैल्यू विल कम इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को आपको हमेशा मेजर करना है फ्रॉम द नॉर्थ साइड, तो आपको ये एंगल चाहिए, नॉर्थ साइड से सर्वे लाइन तक का ये एंगल चाहिए, एंड वी हैव दिस एंगल विथ अस इन अ फॉर्म ऑफ अ होल सर्कल बेयरिंग, अपने पास ये एंगल है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 360 माइनस दिस WCB करना पड़ेगा टू गेट दिस रिड्यूस बेयरिंग. So here in the fourth formula we did that the 360 degree minus WCB to get this RB. Okay, and how we are defining this RB? We are defining this RB by giving the prefix and suffix as a NW. So this is the notations we are showing for the reduced bearing. Okay, तो जब आपको होल सर्कल बेयरिंग दिया होगा तो आपको ये रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करना आएगा. Okay, then if reduced bearing is given and it is asked us to find out the WCB, so the same but the reverse process we have to do to get that reduced bearing. Okay, sorry, to get that whole circle bearing. So for example, in the reduced bearing आपको दिया है जो north east लिखा होगा, okay, and the angle is given over here, and ये angle हमेशा 90 डिग्री से कम ही होता है कौन सा भी इन रिड्यूस बेयरिंग में, ठीक है, सो सपोज दिस एंगल इज ऑफ 80 डिग्री एंड इट इज गिवन विद द लेटर्स NE, तो आपको पता है NE दैट मींस इट इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो just remove the prefix and suffix and write down the same angle to show it as a to convert it into a whole circle bearing. तो बस आपको सफिक्स प्रीफिक्स निकाल के ये वाला एंगल ऐसे के ऐसे लिखना है, सो दिस विल बिकम अ WCB, होल सर्कल बेयरिंग बन जाएगा, ठीक है. If the angle is given again here 80 दिया है, this is also again 80, but the prefix and the suffix are S and E. So SE means it is showing the second quadrant. So second quadrant means angle is always less than 180 degree. ठीक है, तो अगर आपको ये वाला एंगल दिया, आपको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 180 में से इतना एंगल डिडक्ट करना होगा, देन यू विल गेट द होल सर्कल बेयरिंग एंगल ओवर हियर. ओके, देन द सेकंड फॉर्मूला विल बिकम 180 माइनस RB. ठीक है, तो ये 180 पूरा, उसमें से दिस वी विल डिडक्ट दिस एज अ दिस RB टू गेट द WCB. तो आपको फिर ये सर्वे लाइन का WCB मिल जाएगा इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, इफ थर्ड क्वाड्रेंट का अगर आपको दिया है RB एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द WCB, तो क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी एंगल दिया है just add 180 in that angle to get the WCB. So here we added 180 into the reduced bearing if the reduced bearing is in the third quadrant. ठीक है, then the next last one, if the reduced bearing in the fourth quadrant, then deduct that, अगर ये वाला दिया है आपको reduced bearing and it is asked us to convert this reduced bearing of this survey line into whole circle bearing, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा 360 में से ये एंगल डिडक्ट करना पड़ेगा, then we will get the reduced bearing of this line. Okay, so 360 minus जो कुछ भी reduced bearing का एंगल है that we need to deduct, then we will get the angle in a form of a WCB, whole circle. ठीक है, now see once again these PPTs. So okay, before to that conversion we will see the new terms, some related to these bearings. ये
आपको लगेंगे. Okay, these terms will require you to solve the numericals. So before to solving some numericals, we will see these two some new terms. So forebearing and the back bearing. So for each line, we have two bearings. One is a forebearing and the second one is a back bearing. हर एक लाइन को आता है. जो कुछ भी लाइन आप सर्वे करोगे तो हर एक लाइन को हमेशा फोर बेरिंग आएगा एंड बैक बेरिंग आएगा. तो फोर बेरिंग किसको बोलेंगे? The angle which we measured in the direction of the survey line is called as a forebearing. Okay, in the direction of survey line means here in the diagram you can see that the survey line is AB. Okay, so obviously we are giving the notation to that line as a and B, because the we are starting from the initial point and we will end at the B point. So ये AB is the survey line and the direction of the survey is from A to B. ठीक है. तो जहां जो डायरेक्शन में आपका सर्वे स्टार्ट है मीन्स आप पहले ए पे खड़े रहोगे एज अ ऑब्जर्वर and you will going to observe the B point. Okay, so means starting first point is a point and the last point is a B point. तो आप A first point पे जो आप एंगल मेजर करते हो तो that first point angle we will call it as a forebearing. ठीक है. See here, when the bearing of the line is measured from the initial point towards the final point of, then this is called as a forebearing or a forward bearing. Forward bearing जनरली यूज नहीं करते, हमेशा अपन फोर बेरिंग ही बोलते हैं. ठीक है. तो मीन्स इनिशियल पॉइंट से आप एंगल लोगे टूवर्ड्स द फाइनल पॉइंट. ओके, सो दैट मीन्स इफ वी आर मेजरिंग द एंगल टूवर्ड्स द सर्वे लाइन, then that angle we are calling it as a forebearing. Okay, तो A से B तक अगर आपने एंगल मेजर किया मीन्स A पे अगर आपने कंपास रखा तो आपका मेरिडियन आएगा ये एरो के डायरेक्शन में, ये मेरिडियन आपका जाएगा. ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो कंपास मैंने आपको दिखाया था. So if you will going to hold that compass on the A point, so the direction of that meridian is in this arrow direction. Okay, and we will get this angle of our survey line is a theta, and that theta we will call it as a forebearing. Okay, the back bearing क्या होगा? So the angle which we have taken opposite to the direction of survey line. तो survey line का direction क्या है? A to B है. उसके अपोजिट अपन ने एंगल लिया है मीन्स बी टू ए एंगल लिया है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ बैक बेरिंग. ओके, if you feel it difficult then you can say that if we measure the angle from the final point towards the initial point is called as a back bearing. ठीक है, वैसे भी बोला तो भी चलेगा. तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को का अगर अपन ने एंगल मेजर किया तो उसको बोलेंगे बैक बेरिंग. मीन्स वो केस में आपका जो कंपास होगा सो वो बी पॉइंट पे होगा और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे ए पॉइंट थ्रू दैट कंपास. ओके, सो दैट एंगल यू विल गेट इट एज अ फाई एंड दैट फाई एंगल वी विल कॉल इट एज अ बैक बेरिंग एंगल. ठीक है, दैट मीन्स अपोजिट टू सर्वे लाइन. आपका सर्वे लाइन कैसे ए टूवर्ड्स बी है मीन्स आप ए से सर्वे स्टार्ट करोगे बी तक जाके एंड करोगे. मीन्स इफ वी आर मेजरिंग द एंगल अपोजिट टू दिस सर्वे लाइन फ्रॉम बी टू ए, अगर आप एंगल मेजर कर रहे देन दैट एंगल वी विल कॉल इट एज अ बैक बेरिंग. ठीक है, और फ्रॉम फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट अगर आप बेयरिंग मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे बैक बेयरिंग. अगर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जो सर्वे लाइन के डायरेक्शन में ही अगर एंगल मेजर कर रहे हैं सो उसको अपन बोलेंगे फोर बेयरिंग. ओके, एंड व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दिस टू? फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में रिलेशन क्या होगा? सी दिस, ये लाइन अपन ने एक्सटेंड किया है आगे. ओके, सो दिस थीटा विल बी अ फोर बेयरिंग and this phi will be a back bearing. So what will be the relation between these two angles? So हमेशा 180 का डिफरेंस रहेगा. ठीक है, तो हमेशा ये दो एंगल्स में 180 का डिफरेंस रहेगा. तो here for the AB phi will be 180 plus theta. तो ये AB के लिए ये phi का वैल्यू कितना रहेगा? 180 plus this theta. ठीक है, this will be the relation between the forebearing and back bearing. Okay, similarly we can see it for the CD line. CD line के लिए देखेंगे तो अपना सर्वे लाइन कहाँ से C towards D है. ठीक है, तो ये सर्वे लाइन में
फोर बेरिंग कौन सा होगा? सो इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन, इफ वी मेजर द सर्वे इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन, तो मेरा सर्वे लाइन का डायरेक्शन क्या है? सी पॉइंट यहाँ है, यहाँ डी पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इज सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पे मेरा कंपास है और मैं डी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रही, जैसा मेरा सर्वे लाइन आता है सी टूवर्ड्स द डी, सेम वे आई केप्ट माई कंपास ऑन द सी पॉइंट एंड आई एम ऑब्जर्विंग द डी पॉइंट। तो मेरे सर्वे लाइन के डायरेक्शन में ही मेरा एंगल है, तो ये मेरा थीटा आ जाएगा फोर बेरिंग। ओके, तो सीडी के केस में मेरा ये वाला थीटा आ जाएगा फोर बेरिंग, एंड बैक बेरिंग क्या आ जाएगा? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। तो फाइनल पॉइंट मेरा डी है और मैं इनिशियल सी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रही, मीन्स अपोजिट टू सर्वे लाइन में ऑब्जर्व कर रही, एंड आई गॉट द एंगल इट एज अ फाई। ओके, so this phi will be my back bearing in case of my CD line. ठीक है, now what will be the relation between these two? तो ये होगा मेरा back bearing, ये होगा थीटा मेरा फोर bearing, and what will be the relation between these two? So four bearing is equal to, sorry, yes, four bearing is equal to this phi plus 180 आ जाएगा, या फिर we will call it as a phi is equal to this थीटा माइनस 180। सो थीटा माइनस 180, ठीक है। तो दोनों जगह पे फाई का वैल्यू फाइंड आउट किया। इन फर्स्ट केस दिस विल बी 180 प्लस थीटा, एंड इन सेकेंड केस इट इज थीटा माइनस 180। होप यू अंडरस्टैंड दिस, what is mean by forebearing and what is mean मैम by backbearing? Yes. मैम देयर कैन बी ऑल्टीट्यूड डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स राइट, लाइक ए और बी के बीच में हाइट डिफरेंस भी हो सकता है। एक सेकेंड, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन, वर्धमान? Ma'am, there can be altitude difference between these 2 points, right? That's why. Is having some angle, not theta line but straight line is there, but it is having some angle. You are observing these two images, or these two images are a plan view. Okay, टॉप से देख रहे हो, और टॉप से ये फिर ये लाइन का बेरिंग क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका एक का बेरिंग ये आ जाएगा, दूसरे का सेम लाइन का बैक बेरिंग ये फाई आ जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 180। ठीक है। Okay. Ma'am, and what if we join D point and B point? तो वो फॉरवर्ड बेयरिंग होगा कि बैक बेयरिंग, वो कैसे पता ओके, चलेगा? बताती हूँ। तो आपका सर्वे लाइन कैसे होगा? बी टू डी होगा, बी इज योर इनिशियल पॉइंट, डी इज योर फाइनल पॉइंट। ठीक है, ओके। क्योंकि अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके लेटर्स में बी पहले आता है, डी बाद में आता है, तो आपका सर्वे लाइन होगा बी टूवर्ड्स डी। ओके, तो बी से अगर आप डी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो मीन्स बी विल बी द इनिशियल पॉइंट एंड आप डी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दिस दिस एंगल विल बी योर फोर बेरिंग। ओके, अगर आपके बीडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही अगर आप एंगल ले रहे हो, तो वो आपका होगा फोर बेरिंग। ओके, अगर ओके। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स योर कंपास इज ऑन द डी पॉइंट एंड यू आर ऑब्जर्विंग द बी पॉइंट, देन ये होगा आपका बैक बेरिंग। यहाँ से पूरा आपका आ जाएगा बैक बेरिंग। ओके। ठीक है, एंड हमें वो भी आपका दोनों का डिफरेंस आएगा हमेशा 180, बिकॉज ये आपका आ जाएगा यहाँ, अगर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो ये लाइन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट से यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का डिफरेंस हमेशा 180 आता है। सो द रिलेशन बिटवीन बैक बेरिंग एंड फोर बेरिंग इज ऑलवेज इट इज गिवन एंड द ऑन द बॉटम ऑफ बेरिंग एंड बैक बेरिंग। ठीक है, नाउ वी विल स्विच टुवर्ड्स दिस न्यूमेरिकल्स। नाउ हियर I have given you some numericals to solve. ठीक है, so convert the following whole circle bearing to a quadrantal bearing. That means reduced bearing में आपको convert करने, whole circle bearing दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल बेरिंग में तो हमेशा एंगल आपका 90 डिग्री से कम ही आता है, यह आपका एंगल अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ये कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ I solve this first two numerical so that you will get idea how to solve these numericals। ठीक है, we will see। तो आपको पहला दिया है 23 डिग्री 30 मिनट्स, तो 23 डिग्री 30 मिनट्स we have to convert it into a reduced bearing। ठीक है, तो here whole circle bearing is given 23 degree 30 minutes। now ये 23 means whole circle bearing दिया है, तो ये obviously फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स जितना कुछ अपना WCB होगा द सेम विल बी अवर RB, रिड्यूस बेरिंग। ठीक है, here we can see that from the diagram. Just wait. यहाँ से समझ में आएगा, अपना 23 डिग्री था, सो WCB 23 दिया था, तो 23 मीन्स थीटा 1 अपना यहाँ 23 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस बेरिंग में। तो 23 अगर आपका यहाँ एंगल आता है, देन रिड्यूस बेरिंग क्या आ जाएगा, नॉर्थ 23 ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं 23 ही एंगल होगा, एंड टूवर्ड्स द ईस्ट वी आर मेजरिंग। ओके, so north 23 east will be our reduced bearing. The conversion of WCB into reduced bearing will be N 23 degree east. We will see that. So 23 degree 30 minutes. So उसका conversion क्या आएगा, N 23 degree 30 minutes east. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था the angle will remain same, but in case of reduced bearing only the prefix and suffix will get added with that angle. ठीक है, but RB and WCB का एंगल सेम रहेगा। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 220 डिग्री 54 मिनट्स। So 220 degree means it is more than 90 degree and less than sorry, it is more than 180 degree and less than 270 degree. ठीक है, 220 degree, some minutes are there but हाँ, so 220 डिग्री था ना, तो देखो 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, so 220 यहाँ आ जाएगा। तो ये 220 को आपको कन्वर्ट करना है रिड्यूस बेरिंग में। ओके, सो 220 विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का नोटेशन क्या होगा, एस डब्ल्यू। ओके, यहाँ SW दिख रहा है, बट दिस थीटा 3 क्या हो जाएगा आपका, सो थीटा 3 विल बी फ्रॉम साउथ से आपको मेजर करना है, सो फ्रॉम साउथ अप टू द सर्वे लाइन, तो ये एंगल आपको निकालना है, और आपको दिया कौन सा है, 220 डिग्री, ये पूरा एंगल आपको दिया है 220 डिग्री। तो हाउ वी विल गेट दिस मच ऑफ एंगल, ये पूरा 220 दिया है आपको, ये इतना सा एंगल कैसे कैसे मिलेगा, हाउ यू विल गेट दिस मच ऑफ एंगल, 220 -180 WCB एग्जैक्टली, -180। यस, सो WCB में से बस -180 करना है, तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा, मीन्स 180 - 220 करोगे तो यहाँ आपको एंगल मिल जाएगा, दैट S and W suffix will and prefix will come after that। ठीक है, सो वी विल सी इट, देखो 220 डिग्री 54 मिनट्स। मॅम हाँ, यस, स्क्रीन नाही दिसत आहे मॅम। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप लॉग आउट करके लॉग इन करोगे या रिफ्रेश करोगे, यस मैम। बाकी सबको दिख रहा है ना, Yes, ma'am. यस मैम। ओके, थैंक यू। हाँ, तो WCB क्या था अपना, 220 था, तो 220 को 180, 220 में से 180 डिडक्ट करना है, सो 220 माइनस 220 डिग्री 54 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, एंड यू विल गेट आंसर S 40 डिग्री 54 मिनट वेस्ट। ठीक है, क्योंकि अपना थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो सो prefix will be S and the suffix will be W. So S 40 degree 54 minute west will be the reduced bearing। ठीक है, बट अगर आप ये मैन्युअली सॉल्व करोगे, सो प्लीज कीप इन माइंड दैट your seconds are your minutes are will be of a 60 degree always, means 60 के बाद आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में। ठीक है, तो ये आप 100 में से डिडक्ट नहीं करना, मीन्स इफ यू कैन सॉल्व इट, जैसे कि 220, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ, लेट इट बी। सो 220 डिग्री माइनस 54 मिनट्स 54 माइनस 180 डिग्री आपको करना है, तो वो कैसे